ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن مسائلستان کا گڑھ بن گیا۔ ریلوے انتظامیہ کی غفلت کے باعث مسافر خوار ہونے لگے۔ ریلوے اسٹیشن پر صفائی کا نظام اور انفارمیشن سیل بالکل ناکام۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ رانا بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رانا بلال، بتائیے گا ٹرینوں کی تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹیشن کی تو یہ اسٹیشن اس وقت مسائلستان کا گڑھ بن چکا ہے۔ ملتان ریلوے ڈویژن کی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ایک تو نہ تو یہاں پر صفائی کا پراپر انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انفارمیشن سیل ناکام ہو چکا ہے۔ واش روم کی صفائی کے حوالے سے بات کی جائے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو یہاں پر سٹالز قائم کیے گئے ہیں، باہر کی نسبت جو ہے وہ یہاں پر مہنگے داموں جو ہے وہ چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹرینوں کی آپ نے تاخیر کے حوالے سے بات کی ہے تو ٹرینوں کی جو تاخیر ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر معمول بن چکی ہے۔ کئی گھنٹے جو ہے وہ ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو جو ہے وہ خاصا انتظار کی اذیت کا پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آنے والے مسافر ہیں ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر سے جو مختلف ٹرینوں سے کراچی، لاہور، فیصل آباد اور دیگر جو شہروں کی طرف جاتے ہیں، نہ ہی تو ان کے مسافروں کی جو ہے وہ یہاں پر پراپر چیکنگ کی جاتی ہے۔ میرا کیمرہ مین حسیب اگر آپ کو ابھی بھی دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واک تھرو گیٹ جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے۔ یہاں پر کوئی ایک ایسا سیکورٹی اہلکار ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو پراپر طریقے سے جو ہے وہ مسافروں کی چیکنگ کرے اور ان کے سامان کی چیکنگ کی جائے، تاکہ کوئی ایسی مواد یا کوئی ایسی چیز نہ لے کر جائے کہ مسافر میں کوئی ٹرینوں میں جو ہے وہ کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اس کے ساتھ جو انتظامات ہیں مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رانا بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ یہ سخی سرور میں کوئٹہ روڈ بواٹا سے کھر شاہراہ کئی گھنٹوں سے مکمل طور پر بند ہے۔ کوئٹہ روڈ بواٹا کھر شاہراہ گڑھوں کی وجہ سے ٹرکوں کے گرنے کے باعث بند۔ شاہراہ کوئٹہ روڈ بواٹا کھر بلاک ہونے سے سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی معطل، خراب اور گرے ٹرکوں کو اٹھانے کے لیے NHA کا عملہ نہ پہنچ سکا۔ روڈ بندش کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے، علی موسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ 3 سال سے یہ جو بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی مرکزی قومی اکلوتی بین الصوبائی یہ شاہراہ ہے، جہاں سے روزانہ کی تعداد میں ہزاروں مسافر یہاں سے سفر کرتے ہیں، سیاح یہاں سے سفر کرتے ہیں، بلوچستان سے پنجاب آتے جاتے رہتے ہیں۔ جبکہ بلوچستان سے پنجاب جتنی بھی پھلوں اور سبزیوں کی یہاں سے سپلائی یہاں سے ہوتی ہے اور یہ مین تجارتی روٹ ہے، مگر صورتحال یہ کہ عرصہ 3 سالوں سے یہ جو شاہراہ ہے اس کی ابتر صورتحال ہو چکی ہے۔ یہ شاہراہ جو ہے اب مکمل طور پر چلنے کے قابل ہی نہیں رہی ہے۔ عرصہ دراز سے اس کا ٹینڈر ہوا تھا، مگر ٹینڈر پھر کینسل ہو گیا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے مراحل جات جو ہے وہ NHA کو ارسال کیے جا رہے ہیں، مگر تاحال جو ہے اس روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے کسی قسم کے اقدامات جو نہیں کیے گئے ہیں۔ گزشتہ رات سے جو ہے کئی ٹرک جو ہے وہ گر گئے تھے اور متعدد جو گاڑیاں تھیں وہ بڑے بڑے گڑھے ہونے کی وجہ سے وہ ایکسل ٹوٹ جانے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، جس کو ہٹانے کے لیے موقع پر NHA کی جانب سے کوئی ہیوی مشینری موجود نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کوئی NHA کا وہاں پر آفیسر موجود ہے، تاکہ جو گرے ٹرک تھے ان کو ہٹایا جا سکے اور ٹریفک کی روانی کو جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے۔ مگر وہاں پر جو بواٹا کے کٹائی موڑ ہیں ان کی صورتحال جو انتہائی خراب ہے، گاڑیاں کٹائی کرتے ہوئی جو ہے وہ گر جاتی ہیں، نامناسب کٹائی موڑ، اور جو روڈ کی صورتحال ہے وہ بالکل چلنے کے قابل ہی نہیں رہی ہے۔ یہاں پر تقریباً یہ 15 کلومیٹر کا جو بواٹا سے کھر تک کا جو فاصلہ ہے، یہ گاڑیاں پہلے 15 سے 20 منٹ میں سفر طے کرتی ہیں، اب یہ گاڑیاں جو ہے 3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ اس سفر کو طے کرنے میں لگا جاتی ہیں۔ مگر یہ جو ہے روڈ اب در سے سر بن گئی ہے مسافروں کے لیے، ٹرانسپورٹر کے لیے اور سب لوگوں کے لیے، کیونکہ یہاں سے گاڑیوں کا جو چلنا ہے انتہائی مشکل ہو گیا۔ جبکہ صورتحال یہ کہ یہ جو ٹریفک بلاک ہونا ہے یہ معمول بن چکا ہے۔ اس حوالے سے ہماری ضلع انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے NHA کو مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ علی موسیٰ رضا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ سرنڈا محمد پناہ میں طاہر والی چیک پوسٹ کے قریب آئل ٹینکر الٹنے کا واقعہ، ریسکیو آپریشن مکمل، ٹینکر کو سڑک سے ہٹا دیا گیا۔ مظفر گڑھ ملتان جانے کے لیے بند قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ آئل ٹینکر میں 48,000 لیٹر مینتھول لوڈ تھا۔
ऑयल टैंकर कराची से पेशावर जा रहा था कि रोड क्रॉसिंग के दौरान उलट गया था। आपको अपडेट करें, तरंडा मोहम्मद पनाह में ताहिर वाली चेक पोस्ट के करीब ऑयल टैंकर उलटने का वाकया पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, टैंकर को सड़क से हटा दिया गया। सैकड़ों पुलिस मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चे नौकरियों से फारिग। 24 जुलाई से फैमिली क्लेम पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी से फारिग किया गया। आईजी ऑफिस का 24 जुलाई के भर्ती मुलाजमीन के अहकामात मनसूख करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म। 24 जुलाई के बाद भर्तियों की तफसीलात पर फॉर्मा के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को भिजवाने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं, सैकड़ों पुलिस मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चे नौकरियों से फारिग। 24 जुलाई से फैमिली क्लेम पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी से फारिग किया गया। आईजी ऑफिस का 24 जुलाई के भर्ती मुलाजमीन के अहकामात मनसूख करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म। कोटअदू में मौत का खेल पतंगबाजी जारी। पुलिस पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। शहरियों के मुताबिक डोर फेरने के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके। इंतजामिया किसी साहने की मुंतजिर है। कोटअदू से आपको अपडेट करें, मौत का खेल पतंगबाजी जारी है। पुलिस पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो चुकी। शहरियों के मुताबिक डोर फेरने के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। इंतजामिया किसी साहने की मुंतजिर है। मैक्लोडगंज पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। बरामद होने वाले दर्जनों मोटरसाइकिल मालिकान के हवाले। गैंग की गिरफ्तारी पर शहरियों का पुलिस को खिराजे तहसीन। बरामद होने वाले दर्जनों मोटरसाइकिल मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, मैक्लोडगंज पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद होने वाले दर्जनों मोटरसाइकिल मालिकान के हवाले कर दिए गए। गैंग की गिरफ्तारी पर शहरियों का पुलिस को खिराजे तहसीन। मलिक रजा रबानी खर की सूबाई वजीर बराए आपाशी मोहम्मद काजिम पीरजादा से मुलाकात। क्लिंगवाला सफरबंद फकीर वाली की असर नौ तामीर की मंजूरी करवा ली। दरिया सिंध में हालिया सैलाब के पेश नज़र सफरबंद को पहुंचने वाले नुकसान से आगाह किया। उनका कहना था, सूबाई वजीर ने जल्द दोनों सफरबंद असर नौ तामीर करवाने का वादा किया। सफरबंद की तामीर से मुतालिक टेंडर के बाद काम शुरू करवाया जाएगा। अवाम को किसी भी मौका पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपको अपडेट करें, मलिक रजा रबानी खर की सूबाई वजीर बराए आपाशी मोहम्मद काजिम पीरजादा से मुलाकात। खलिंगवाला सफरबंद फकीर वाली की असर नौ तामीर की मंजूरी करवा ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खातून वकला के लिए अहम इक़दाम। पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। खातून वकला ने अदालत को लेडीज बार रूम और डे केयर सेंटर्स की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला का लेडीज बार रूम बनाने के लिए महकमे तामीरात और मवासलात को इक़दामात का हुक्म। बहावलगर और लोधरा के इलाकों में लेडीज बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। महकमे CNW ने तीनों तहसीलों में लेडीज बार रूम्स के लिए स्टैंडर्ड नक्शा तैयार कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना जरूरी है। दीगर इलाकों में मरहलावार लेडीज बार रूम्स बनाने का जायजा लिया जा रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक का कहना था कि फोर्ट अब्बास और दुनियापुर में लेडीज बार रूम कायम किए जाएंगे। खातून वकला की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर्स भी कायम होंगे। खवातीन वकला की सहूलत के लिए किचन भी बनाया जाएगा। के बंगला मिंठार में मसनूई महंगाई का तूफान। नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरी कहते हैं कि दुकानदार मर्जी का रेट वसूल करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दिलबर हुसैन से। मंठार और इसके गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। इशिया खुर्दोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिलती। शहरी जो है इशिया खुर्दोनोश की मसनूई कीमतें दुकानदार जो है अपनी कीमतें खुद तय करके जो है वसूल कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो गरीब लोग हैं बहुत तंग हैं। यहाँ पर जो दूध दही हर चीज़ महंगी है, गोश्त भी महंगा है, कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है। तो
तो मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वे इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मार्केट में चीज़ें काफ़ी महंगी मिल रही हैं, मजिस्ट्रेट चक्कर नहीं लगाता, तो दुकानदारों ने अपने रेट मुकर्रर किए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सब्जियां बहुत महंगी हैं, गोश्त, मुर्गी का गोश्त भी 700 रुपये मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मजिस्ट्रेट को चाहिए कि मंठार में चक्कर लगाएं और चीज़ों को कंट्रोल करें। जी, शहरी का यही कहना है कि इलाका मजिस्ट्रेट बंगला मंठार में आएँ, यहाँ का चक्कर लगाएं और रेट लिस्ट के मुताबिक शहरियों को खुर्दनोश रेट लिस्ट पर मिलने पर पाबंद करें। जी शुक्रिया दिलबर हुसैन। जहानिया में नहर लोअर बारी दुआब के करीब रोड टूट फूट का शिकार, कॉलेज के लिए आने वाले तलबा और तालिबात परेशान। रोड पर गहरे गड्ढे पड़ने से आए रोज हादसात मामूल बन गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीला जानते हैं जैन यूसुफ से। जी जैन, क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया नहर लोअर बारी दोआब के करीब रोड पर मौजूद हूँ। इस रोड को अरसा दराज से तमीर ना किया गया है, जिस वजह से इसके ऊपर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि इस रोड को कॉलेज रोड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। तलबा और तालबात को यहाँ से गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। साथ ही इस रोड को वॉकिंग ट्रैक भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह सवेरे यहाँ पर शहरी वॉक करते हैं, मगर इसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से और खस्ता हाली होने से शहरियों को और तलबा तालबात को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, आइए मजीद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, ये कनाल गार्डन रोड भी इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है। इसमें जनाब ये है कि जहाँ से काफ़ी सारे बच्चे जो गुजरते हैं, लेकिन उनके लिए बड़े मसाइल हैं। सुबह वॉक करने के लिए यहाँ पे जब गुजरते हैं तो रोड टूटा फूटा है, यहाँ पे बहुत सारे गार्बेज कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिसके लिए हमें सुबह वॉक करते हुए बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, अरसा दराज से ये रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कॉलेज की छुट्टी टाइम रश होता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात टायर्स के नीचे पत्थर आने की वजह से बाइक्स वगैरह स्लिप हो जाती हैं, जिससे शदीद ज़ख्म वगैरह आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, शहरियों और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से फौरी इस रोड जैन यूसुफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बात करेंगे रहीम यार खान में साफ पानी की अदम दस्तयाबी संगीन मसला। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का नाकारा हो गए, शहरी दूर दराज के इलाके से पानी लेकर आने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीला जाने के आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा शहरियों को ये पानी का मसला कब से दरपेश है? राब्ता मुनक़ता हो गया, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा, शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस के शहरी दूर दराज के इलाके से पानी लेकर आने पर मजबूर हैं। शहरियों की आला हुकाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने की अपील है। आपको अपडेट करें, रहीम यार खान में साफ पानी की अदम दस्तयाबी संगीन मसला। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो चुके हैं, शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस के शहरी दूर दराज के इलाके से पानी लेकर आने पर मजबूर हैं। शहरियों के आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने की अपील भी है। आपको अपडेट करें, रहीम यार खान में साफ पानी की अदम दस्तयाबी संगीन मसला। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा, शहरी दूर दराज के इलाके से पानी लेकर आने पर मजबूर नजर आते हैं। शहरियों की आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने की अपील। आपको रहीम यार खान से अपडेट कर रहे हैं, जहां साफ पानी के अदम दस्तयाबी संगीन मसला इख्तियार करके शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए। शहरी दूर दराज के इलाके से पानी लेकर आने पर मजबूर हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गढ़ा मोड़ में डीजल की कीमतों में इजाफे पर ट्रक ड्राइवर शदीद परेशान। ड्राइवर्स का कहना था कि डीजल महंगा होने से काम ना होने के बराबर है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं चौधरी साजिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गड़ा मोड़ के ट्रक अड्डा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो गुज़िश्ता रोज बढ़ने वाली डीजल की कीमतों से जो ट्रक ड्राइवर हैं वो शदीद परेशान है। उनका कहना है कि पहले ही महंगा इतना था, डीजल के सवारी ना होने के बराबर थी, अब मजीद डीजल हुकूमत की जानब से महंगा कर दिया गया है, जिससे हमारे कारोबार मजीद कम पड़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ ड्राइवर मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं किस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, पहले ही बड़े परेशान सी, काम है नहीं सीगा साडे कोल, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਘਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ।
जी, जैसा कि आपने ट्रक ड्राइवर की बात सुनी, उनका कहना है कि पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो चुका है, और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिससे हमारे जो काम है वो मजीद कम पड़ गए हैं। हमारी मौजूदा हुकूमत से अपील है कि डीजल की कीमतों में कमी की जाए ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे तरीके से चल। शुक्रिया चौधरी साजिद। और अब बात करेंगे लिया में डिप्टी कमिश्नर अमीर आबेदार ने सुथरा पंजाब मुहिम पर काम तेज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अमीर आबेदार का कोट सुल्तान का दौरा, यूनियन कौंसिल में मीटिंग की और डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा मुहिम का जायजा लिया और अहकामात भी जारी किए। अब तो आपको अपडेट करें, लिया में डिप्टी कमिश्नर अमीर आबेदार ने सुथरा पंजाब मुहिम पर काम तेज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अमीर आबेदार का कोट सुल्तान का दौरा, यूनियन कौंसिल में मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा पंजाब मुहिम का जायजा लिया और अहकामात भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर कोट हदूद सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक हो गए। अचानक वार्ड नंबर 9 का दौरा किया और सफाई सुथराई के मामलात का जायजा लिया। नाकिस सफाई पर अमले पर बरहमी का इजहार भी किया गया। आपको बता रहे, डिप्टी कमिश्नर कोट हदूद शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर का वार्ड नंबर 9 का अचानक दौरा, वार्ड में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो गई। सदारती उम्मीदवार शेख खुर्शीद ने चैम्बर 2 का दौरा किया और वोट की इस्तदा की। उनका कहना था कि कामयाब होकर वकला के तमाम मसाइल हल करूंगा। मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भाव के इलेक्शंस तो 11 जनवरी को होंगे, लेकिन उसके लिए गहमा गहमियाँ अभी से शुरू हो गई हैं। चैम्बर टू चैम्बर वकला से वोट की इस्तदा शुरू कर दी गई है। शेख खुर्शीद सऊ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट के। कैसा देख रहे हैं इस बार के, आपके लिए कितनी फिजा पुरसाज है, साजगार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बार के अंदर जो है हर साल उम्मीदवार आते हैं और हकीकी जमहूरियत भी हमेशा बार के अंदर ही होती है। हमेशा दोस्त नए दोस्त बनाते हैं, पुराने दोस्तों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मेरा भी यही एक मिशन है, इरादा है, और इंशाअल्लाह ताला मैं बार के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के हवाले से हैं और हमारे नौजवान वकला हैं उनके हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनको भरपूर तरीके से कोशिश करूँगा कि उनको हल कराऊँ, और बार और बेंच के दरमियान जो एक खला नजर आता है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसको पूरा करने की। नौजवानों से भी पूछते हैं ना, नौजवान वकला से कैसे देखते हैं कि कितना किरदार अदा करती है काबीना इलेक्शंस के जीतने के बाद नौजवानों के मसाइल? अभी तो हम न्यू हैं, इंशाल्लाह अभी आगे की सूरत हाल देखेंगे, फिर इंशाल्लाह उसका जायज़ा भी लेंगे, फिर जो बेहतरी नज़र आएगी हम उनके साथ खड़े होंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात है, नए हैं तो पुराने भी हो जाएंगे। असल चीज़ तो वीएन है, और वीएन क्लियर है कि जो वकला के मसाइल हल करेगा वही हमारा सरदार होगा। कहना था वकला का भी, और सुन रहे थे आप शेख खुर्शीद सऊ को भी, जो कि उम्मीदवार हैं सदर के बहावलपुर से। जी।